first we had complete, just a moment. First we completed the definition part, right? Second, order and degree. Barabar? And third, we completed formation and one STP. तो solution भी हो गया. Solution में क्या हुआ है? डिफरेंट टाइप्स किया था. पहले वेरिएबल सेपरेट और हम्म। उसमें ही 2-3 टाइप थे और फिर एक था होमोजीनियस. लास्ट जो किया था वो होमो नहीं सर, लास्ट एलडी किया था और उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक बता दिया था आपने. मुझे एलडी कर दिया था क्या? हाँ यस एलडी हो गया था. कोई मुझे लास्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेजेगा क्या? सर लास्ट क्वेश्चन, सर आपने लास्ट एलडी करवाया था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वो फॉर्मूला लिखवाया था, कोई क्वेश्चंस नहीं हुए थे उस पर. एक मिनट रुको ना. कोई मतलब ये solution of differential equation we have already started. Type 1 था variable separable. हाँ हो गया था. सर टाइप टाइप 5 हो तक गया किया था था. सर. हाँ टाइप 5 हो गया टाइप था. 5. टाइप 5 हो गया था ना, मतलब हाँ. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग स्टार्ट कर चुके थे. हाँ सर. Yes, ये sir. कोई क्वेश्चन नहीं किया था, आप बस रफ में बता रहे थे वो कैसा. सर वो y(if) = इंटीग्रल qx if dx + c बताया था एंड में फॉर्मूला. अच्छा, मतलब ये हम लोग कर चुके हैं, बराबर. सो आई विल इरेज एवरीथिंग फर्स्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हम लोग टाइप 6 था कि 7 था? 5. टाइप 5. टाइप 5 में ये बताया था dy/dx प्लस p of x into y is equal to q of x, और dx/dy plus q of y into x is equal to this is p of y, q of y. इसका सॉल्यूशन हम लोगों ने लिखा था, याद है? y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Yes, sir. q of x into इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx plus c. इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? x into इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal to इंटीग्रेशन q of y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy plus c. यही था ना? यहाँ तक किया था ना? यस सर. और इसका कोई एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया नहीं था, है ना? एक लिया था. सर वो आपने रफ में लिया था लेकिन लाइक. dy/dx plus 1/x into y, ये रफ में लिया था. हाँ. is equal to x square. x पर. हाँ. यहाँ पे p of x मेरा था कितना? 1/x. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा आ गया था कितना? e raised to power इंटीग्रेशन p of x dx means e raised to power ln x means x. तो सॉल्यूशन क्या हुआ करता था? y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर into y into x is equal to integration of x square into x dx plus c, which gives you xy is equal to x4/4 plus c. This is what we have done. Barabar? Yes sir. All right. So linear differential equation पे reducible to linear, ये type 6 and type 7, 2 more types left. That's it. Okay, guys, give me a minute. I'd like to search a good problem on linear differential equation first. हाँ guys, the question 2, I'll treat it question 1. Question 2, he's asking t into 1 plus t square. Did I do this example also? No sir. dx
dt आना चाहिए इधर में, इनफैक्ट dx ही आना चाहिए। dx is equal to x plus xt square minus t square and dt. Guys, now just check. If I take this dx here, right, then dt by dx power 1, but power of t is 2. It will not remain linear. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. Okay, in that case, I'll remove this option. If I take dt here and I remove dt from this place, then power of dx by dt is 1 and power of x is 1. Matter over. Linear differential equation. Barabar? Now, what is the dependent variable here? When I write dx by dt, what is the dependent variable? X. X is the dependent variable. Means I'll change it t into 1 plus t square dx by dt. डिपेंडेंट वेरिएबल x, यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल y, तो ये y की पावर 1 लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए, यहाँ पे x की पावर 1 लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए, मींस माइनस ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर। नाउ यहाँ पे dy बाई dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ dx बाई dt का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो दिस विल रिड्यूस टू dx बाई dt t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, माइनस 1 upon t into x is equal to minus t upon 1 plus t square. Now guys, what is p of t here? Minus 1 Minus by 1 1. by t. So what will be the integrating factor? E raised to power minus ln t, minus. that is 1 by t. Right? So what will be the solution? What will be the solution? According to this, this factor and this factor, हम लोग क्या देखते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है यहाँ पे? x। तो सॉल्यूशन आएगा x इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 बाई टी dt plus c. Don't forget to write c. This t is over. Final answer is x by t is equal to tan inverse t plus c. Guys, this is the final solution. You just need to माइनस concentrate. साइन आएगा ना? उससे यहाँ पर t को लेस देन 0 होना चाहिए ना? t को लेस देन 0 होना चाहिए, क्यों? तभी तो लॉन में उसको डाल पाएंगे, वरना तो फिर उसके डोमेन में ही नहीं आएगा। एक मिनट रुको ना। हाँ, guys, are you clear with this? Question number 2. Can I change? Is there anyone taking picture? Vedang is not present today. No, sir. Okay. सर Vedang? ग्रेटर देन 0 ना? अरे हाँ यार, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो वेदांत? ग्रेटर देन 0 कैसे? लॉन ऑफ माइनस 1 बाई टी तो फिर नेगेटिव हो जाएगा। अरे minus 1. लॉन टी है, वैसे ये पता है, ये जरूरी नहीं है, लॉन मॉड टी आता है वो। ओके। अभी हम कभी भी इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स लिखते हैं तो लिखते हैं क्या x ग्रेटर देन 0? नहीं लिखते ना। नहीं। हाँ, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे एक्चुअली कुछ कंडीशंस एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था ना, उसमें कुछ कंडीशंस ऐसी दी हुई थी कि t की किसी वैल्यू पे x का वैल्यू दिया हुआ था, राइट, तो यहाँ पे c भी निकलता है, वो उसमें t नेगेटिव था, सॉरी t पॉजिटिव था, इसलिए मैंने लिख दिया वो बाय द टाइम।
जरूरी नहीं था, लेकिन जरूरी नहीं था, राइट? हाँ, हो गया क्या? हाँ सर। ऑलराइट गाइस, एक क्वेश्चन आप अपनी तरफ से सॉल्व कर दीजिए. आई एम राइटिंग द क्वेश्चन हियर. x into ln x dy by dx. Question number 3. x into ln x dy by dx plus y is equal to 2 ln x. ये तो दिख ही रहा है, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. जरा फटाफट से करोगे तो ना. इनफैक्ट एक और क्वेश्चन करना चाहिए, क्वेश्चन 4. dy by dx is equal to, गाइस थर्ड वाला होमवर्क में छोड़ दो, दिस इज एन इजी क्वेश्चन. ये वाला क्वेश्चन को ट्राई करो, फोर्थ वाला ट्राई करो. dy by dx is equal to 1 upon x cos y, x cos y. यार ये भी बहुत इजी है क्वेश्चन. मुझे कोई अच्छा क्वेश्चन लेना है, रुको एक बार. ये वाला लेते हैं. y अपॉन 2y ln y. अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, ध्यान रखना. मतलब आइडेंटिफाइंग अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज इम्पोर्टेंट. माइनस एक्स. जरा ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम है, देखते हैं कितने लोग करते हैं. गाइस ये dy by dx की टर्म्स में तो लीनियर नहीं है ना. नहीं सर. ln y आ गया ना यहाँ पे, तो उसको सबसे पहले क्या लिखोगे? dx by dy लिखोगे ना. dx by dy is nothing but what? 2y ln y plus y minus x divided by y. स्प्लिट करो और सॉल्व करो बच्चों. सर आंसर भेजा, एक बार चेक करिए ना प्लीज. आंसर, एक मिनट रुको. राइट है. ओके सर. अच्छा बताया उसने क्या किया, उसने डिवाइड किया इसको, तो ये बन गया dx by dy is equal to 2 ln y plus 1 minus x by y. dx by dy पे पावर 1 और x पे पावर 1, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले आया सबसे पहले वो. dx by dy plus 1 upon y into x is equal to 2 ln y. 9 students have done it. 2 ln y plus 1. इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया बच्चों कितना? y. सॉल्यूशन आ गया कितना? एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 ln y plus 1 इंटू वाई dy. बच्चों हो जाएगा ना अब तो?
यस y स्क्वायर ln y का ही है डायरेक्ट। हाँ मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो जाएगा अभी डिफिकल्ट नहीं है मेरे हिसाब से। सर परफेक्ट वही है, लाइक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जरूरत नहीं है। हाँ डायरेक्ट भी हो सकता है, यू आर राइट। ठीक है बच्चों, अभी देखो इस पे डिपेंडेंट क्यों मैं बोल रहा हूँ अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान दो जरा इस क्वेश्चन पे। टाइप 6 डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सब लोग ध्यान देना। अच्छा ध्यान दो, dy by dx प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब ही लिख देते हैं, चलो वाई क्यूब। ओके, अब जो ये dy by dx पे पावर 1 y पे पावर 3 लीनियर नहीं है, dx by dy में कन्वर्ट करूंगा तब भी x पे पावर 3 तो रहेगी लीनियर नहीं है। तो सबसे पहला काम मैं क्या कर रहा हूँ, इसको y क्यूब से डिवाइड कर रहा हूँ। देखो तुम लोग को ये स्टेप्स आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तब। तो y क्यूब से डिवाइड करने का बेनिफिट क्या है, जरा एक बार डिवाइड करते हैं पहले। 1 by y क्यूब डिवाइड बाई dx प्लस 1 by y स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब बच्चों ये जो फैक्टर है ना, ये वाला फैक्टर, इस फैक्टर को ध्यान से देखो, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर, ये कहीं अटैच्ड है एक दूसरे के साथ। का डिफरेंशिएशन का नेगेटिव। हाँ, और जो इसमें इसमें पता है क्या है, इसमें अगर तुम 1 by y स्क्वायर को t डालते हो तो माइनस 2 by y क्यूब dy by dx क्या बन जाएगा, dt by dx बन जाएगा। अब सोचो, ये तो आ जाएगा t, ये तो आ जाएगा t इंटू एक्स, टी का पावर 1 हो गया, और ये आ जाएगा माइनस 2 अपन, तो माइनस 1 बाई 2 कर दो, मतलब 2 को डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा माइनस 1 बाई 2 डी टी बाई डी एक्स। देखो क्वेश्चन खत्म, डी हाँ टी वो बाई डी उधर एक्स पे लेके चले पावर 1 जाएंगे। यस सर। और टी ओ पे पावर 1 इज इक्वल टू फाइन, एक्स क्यूब। बताओ बच्चों हुआ कि नहीं हुआ। हो गया सर, फिनिश हो गया। अब ये क्वेश्चन माइनस 2 से डिवाइड करके फॉर्मेलिटी जो भी करनी है कर लोगे क्या। -2 से डिवाइड क्यों? अरे बाबा ये इसका कोफिशिएंट तो 1 मल्टीप्लाई चाहिए ना। करते हैं। मल्टीप्लाई ना। हाँ बाबा वही डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा कितना, माइनस 2x, नो सॉरी माइनस डी टू टी टी बाई डी एक्स माइनस टू टी माइनस, एक्स -2 टी एक्स। थोड़ा ज्यादा ही बड़ा माइनस नहीं लिख दिया मैंने। सर ठीक है सर, क्या? अब देखो बच्चों, ये होगा कितना, माइनस 2x इंटू टी इज इक्वल टू माइनस 2x क्यूब। इसके इंटीग्रेशन में अब आफत आएगी थोड़ी सी, मैं बताऊं कैसे। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होएगा ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा ना। देखो 2x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2, तो सॉल्यूशन इसका क्या आएगा पता है, इसका सॉल्यूशन आएगा t इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन, माइनस साइन तो रहेगा ये वाला, और 2 ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। बच्चों हो जाएगा ना ये। इस एक्स क्यूब को क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख दोगे ना। अब एक्स स्क्वायर को जेड लिख देना एक बार, दैट्स इट, हो जाएगा ना सॉल्व। Yes, sir. एक्स डी एक्स डी जेड में कन्वर्ट हो जाएगा, जेड ई रेज टू पावर माइनस या माइनस एक्स स्क्वायर को लिखना सीधा बच्चों, तो ये जेड ई रेज टू पावर जेड इस टाइप का इंटीग्रल बन जाएगा एक्चुअली। गॉट इट बच्चों। वेदांत ठीक सर, मैं लिख भी रहा हूँ सर। सर डन सर, हो गया। स्क्रीनशॉट भी ले लिया। हाँ अच्छा, इसकी जगह अगर ये वाला क्वेश्चन होता, जरा सोचो सब्स्टिट्यूशन क्या होता, वो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में। एक मिनट,
अच्छा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे कितने एग्जांपल है एक बार बता दूं मैं। 15 एग्जांपल हैं, जिसमें से 3 एग्जांपल हम लोगों ने किए हैं, बाकी सारे फिजिक्स और वो वाले सब टेंजेंट सब नॉर्मल वाले एग्जांपल्स नहीं होते हैं, वो वाले सारे एग्जांपल्स पीडीएफ में तुम्हें मिलेंगे, कर लेना, वो हो जाएंगे। जो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, सर क्वेश्चन आपने नंबर 2, अभी तक पीडीएफ लेकिन भेजा नहीं है। आज मिल जाएगा तुम्हें, आज ही इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का पीडीएफ मिल जाएगा। y इंटू साइन एक्स dy by dx is equal to cos x into sin x minus y square। ध्यान से देखो बच्चों, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर, कुछ चमक रहा है? 1 मिनट सर। हाँ सर, हो जाएगा। y स्क्वायर को लिया t, तो 2y dy by dx बन गया कितना, dt by dx, बराबर ना? डन ना, हो गया ना? अभी तो लीनियर बन जाएगा, पीडीएफ में इसका फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा, बस एक आइडेंटिफाई करना था कि करना क्या है। अब बच्चों, ये 5 मिनट के लिए क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हें मिल रहा है, वो तुम्हें करना है। क्या सब्स्टिट्यूट करना है कि लीनियर बन जाए, और फाइनल सॉल्यूशन चाहिए बच्चों इसका। ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन सर है। भेजना है चार्ट पे। हाँ हाँ, नहीं एडवांस चार्ट का पे मैं भेजना। भेजूंगा ना, इसका फाइनल आंसर भेज रहा हूँ ना। एडवांस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रूव दैट में क्वेश्चन है, तो तुम लोग को आंसर भी लिख के भेजता हूँ ना। बच्चों दिया हुआ है dy by dx, प्रूफ दैट सर जैसे आंसर मत भेजो। अरे नहीं यार, वही वो तो। आंसर तुम लोग को कुछ भी आंसर आएगा वो नहीं चाहिए ना, जो आंसर उसको चाहिए वो लेके आना है ना। मूड खराब हो जाता है सर वो आंसर देख के। यार बेटा, लेकिन वो आंसर चाहिए, मतलब तेरा कुछ भी आएगा वो नहीं चलेगा ना आंसर, ओके सर, ओके सर। उसमें फॉर्मेट में कन्वर्जन चाहिए। e raised to power x minus y into e raised to power x minus e raised to power y, prove that e raised to power y is equal to c e raised to power minus e raised to power x plus e raised to power x minus 1. C is arbitrary constant. ट्राई करो बच्चों, जिसको भी होएगा एक बार हैंड रेज करो। तक कितना टाइम है? इसके लिए टाइम मिलेगा 5 मिनट मैक्स। ओके। सर हाँ बोलो। क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन 2 में y स्क्वायर इक्वल टू टी हमने लिखा, राइट? वो डिफरेंशिएट किया, dy बाई dx dt का बाई dx टर्म्स में आ गया। तो फिर सर जो हम लोग को खाली उसका कोएफिशिएंट 1 लाना है, जो भी करना है हाँ। dy बाई dx का, सर dt बाई dx का इन दिस केस सर। लेकिन sin x भी आ रहा है ना, तो वो हम लोग हटाएंगे कैसे? क्योंकि राइट की में sin x मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, उसमें सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है, मतलब नहीं साइन एक्स से भी डिवाइड करेगा ना इसको तू, अच्छा पूरे मतलब से क्या? ओ हाँ हाँ इसका हाँ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख ले, साइन स्क्वायर एक्स आएगा। सॉल्यूशन भेजूंगा इसका, तो पकड़ लेना एक बार। अच्छा वो शीट भेजोगे क्या आप इसकी, वो पीडीएफ? हाँ हाँ हाँ। ओके सर। आईएफ क्या था? साइन स्क्वायर एक्स। हाँ आई एफ आएगा साइन स्क्वायर एक्स। ओके सर।
7 students have done it. That's nice. Come on, guys. Just a minute, please. हो रहा है था. गाइस जब कोई क्वेश्चन ऐसे जे एडवांस वाला क्वेश्चन हो ना उसमें दम लगा दिया करो अपना. जो कुछ सीखा है सब उसी में तो यूटिलाइज करना है. वो तो इमीडिएटली अभी पूछा गया है तुम मुझसे. 10 दिन बाद पूछेंगे तो भूल जाओगे ना इसको थोड़ा बहुत. हेलो. हाँ बोलो. मेरे को लगा आवाज नहीं आ रही. आप लिख रहे थे ना. बस ये क्वेश्चन डन हो गया अभी. ये e रेज़ टू पावर माइनस वाई था इसको इधर ले आया मैं. अभी e रेज़ टू पावर वाई को t लिखूंगा मैं इसमें. तो ये बन जाएगा मेरे पास dt बाई डी एक्स. और ये माइनस वाला लेफ्ट हैंड साइड में प्लस e रेज़ टू पावर x इंटू टी इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 2x. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया? e रेज़ टू पावर x. दम जो निकल रहा है स्टूडेंट्स का वो यहाँ निकल रहा है पता है. सॉल्यूशन आएगा t इंटू e रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 2x इंटू e रेज़ टू पावर x. ये इसको इंटीग्रेट कैसे करें वहां स्टूडेंट्स को तकलीफ आ रही है. तो बच्चों e raised to the power E raised को to power z x को ले लो. कुछ ले लो. हाँ बस e रेज़ टू पावर x को t ले लो. c लगाना मत भूलो इधर. इसको ऐसे लिख दो e रेज़ टू पावर x इंटू e रेज़ टू पावर x इंटू e रेज़ टू पावर x dx. अब e आ रेज़ टू जाएगा पावर x z e raised to the power x. जेड ले लो. z. जेड हाँ t तो ले चुके हैं ना पहले एक्चुअली. हाँ जेड हाँ. ये बन जाएगा जेड e रेज़ टू पावर जेड dz प्लस c. हो जाएगा ना बच्चों अभी. बाय पार्ट्स. Yes sir, finish. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. सर हाँ बोलो. सर इसके बदले e रेज़ टू x माइनस e रेज़ टू y को t ले लेंगे ना. इससे बहुत इतना करना ही नहीं पड़ेगा. ठीक है ना. वेरीफाई कर लो यार. नंबर ऑफ पेज होते हैं. आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन की यही खासियत होती है एक्चुअली. सर इसने कौन सा किसको t लेने को बोला? e रेज़ टू पावर x माइनस y को. ओह सर अच्छा ये मतलब एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना.
e raised to x minus e raised to y को t ले लिया। नहीं वो हाँ। दो वो क्या कर रहा है मुझे आइडिया नहीं है। द मेथड आई हैव रिटन हियर, एक बार चेक करके देख लो। तुमने जो मेथड लिखा है एक बार ग्रुप पे डाल दो बेटा। ओके गाइस प्लीज एक सेकंड इसका हाँ। स्क्रीनशॉट। आंसर गाइस टाइप 7 एंड देन ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। टाइप 7 में कुछ मतलब ऐसा दम नहीं है कि वो तुम बोलोगे टाइप 7 कोई बहुत बड़ा टाइप सर ने करा दिया, ऐसा इट्स नथिंग लाइक दैट। टाइप 7 इज समथिंग लाइक जैसे ऐसे लिखा हुआ है x dy प्लस y dx, ऐसा लिखा मिलेगा तुम लोग को क्वेश्चंस में। तो बच्चों इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल कैसे चेंज कर दोगे? d of x y लिख दो, dx की y dy है। x dy प्लस y dx, आई एम सॉरी y dx प्लस y dx है ना, ये लिखोगे ना। और इसकी जगह ऐसा हुआ x dy माइनस y dx। वही है ना प्रोडक्ट वाला, और ये वाला हाँ बाबा क्वेश्चन वही 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 वही। अब बच्चों ऐसा अगर लिखा मिला तो क्या करोगे? क्वेश्चन रूल dx x by y d of x by y with negative sign, don't forget। by y सोचो। y dx minus x dy। हाँ हाँ है ना, नेगेटिव आएगा ना। हाँ सर। yes बी केयरफुल। अच्छा अब इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना, उसमें दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम क्लास में करेंगे, और तुम मान के चलो कि इन दोनों क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है ना, वही सारे क्वेश्चंस की रामायण है। मतलब तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना होता है। बेसिकली इसमें कोई किसी को सिखा नहीं सकता कि इसका कोई प्रॉपर रूल ये है। हालांकि रूल है, लेकिन वो रूल सिखा करके और आप किसी भी स्टूडेंट को ये बता सकते हो कि आईआईटी में तुम नहीं जा रहे हो, बस ये जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं उसको सॉल्व कर लो। समझ रहे हो? जैसे बच्चों ये क्वेश्चन ध्यान दो, सब लोग डरना नहीं है क्वेश्चन देख के। हाँ, उसने बोला सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला मैं करूंगा, दूसरा तुम लोग को करना है। बहुत गंदा है क्वेश्चन है, लड़की 1/y साइन ऑफ x by y माइनस y by x cos of y by x प्लस 1, ये आ गया dx प्लस 1/x cos of y by x माइनस x by y स्क्वायर साइन ऑफ x by y प्लस 1/y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों? अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए वेरिएबल सेपरेबल से लेकर के लीनियर तक सब जगह घुमाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम स्मार्टली आइडेंटिफाई करोगे ना बच्चों, तो यहाँ तुम्हें एक चीज जरूर देखने को मिलेगी। ध्यान से देखो वो चीज क्या है इधर। देखो ये वाला फैक्टर ध्यान से देखो बच्चों, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर, इसको एक साथ क्लब कर दूं? डिफरेंशिएटेड है क्या वो? सुनो ना, साइन ऑफ x बाई वाई तो बाहर आ जाएगा ना, साइन ऑफ x बाई वाई तो कॉमन आ जाएगा ना दोनों जगह, यहाँ में और यहाँ में। हाँ एक दूसरे का डिफरेंशियल है। हाँ रुको तो सही 1/y dx माइनस x by y स्क्वायर dy कहाँ है डिफरेंशियल बता? इनटू साइन ऑफ x by y बता कहाँ है ये इसका डिफरेंशियल? ये कहाँ है? नहीं है ना, नहीं है। और देखो था सर सर। हाँ अब जरा इसको ध्यान से देखो बच्चों, इसको ये भी तो, इसमें से भी तो cos ऑफ x by y कॉमन आएगा, तो अंदर कौन बचेगा? 1/x यहाँ से बचेगा और माइनस, अरे यार ये x स्क्वायर है, माइनस y by x स्क्वायर यहाँ से बचेगा और cos ऑफ y by x, ये
ओह सॉरी, यहाँ भी तो कुछ आएगा। 1 by ये x ये dy सुनो ना, वन minus बाई एक्स के साथ कौन आएगा? वन बाई एक्स के साथ dy. कौन आएगा? dy आएगा ना। हम्म और यहाँ कौन आएगा? dx। बराबर है बच्चों? बताओ कौन बच गया? 1 2 3 4 फैक्टर्स काम में आ गए, एक तो प्लस dx बचा, ये तो इंटीग्रेट हो ही जाएगा। और प्लस 1/y² dy बचा, ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा। बच्चों ये दोनों इंटीग्रेट होने के लायक है, ये दोनों इंटीग्रेट होने के लायक है। दैट्स इट, ये दोनों ही इंटीग्रेट होने के लायक है। और बच्चों ये क्या है? ये डायरेक्ट अभी आज ही लिखा है तुम लोगों ने। बताओ y² एलसीएम ले लूंगा तो क्या बन जाएगा? ये d of x by y नहीं बन रहा ये? हाँ Yes, sir. हाँ सर। sin x by y, sin x by y को पीछे लिखते हैं इधर। बताओ इंटीग्रेट होने के लायक नहीं बन गया है फैक्टर? आंसर नहीं समझ रहा सर। हाँ अरे बाबा sin x by y d of x by y, sin x by y को x by y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, माइनस वो cos तो x by cos y, x by y। है हाँ बराबर ना? हाँ और हाँ हाँ ये बताओ चलो नेक्स्ट वाला बताओ। Cos of बस y by x into d of y by x. cos of हाँ d of y by By cos whole of by y by x. x into d of d of y by x Y by y x. by ये x, बन गया ना डिफरेंट। हाँ राइट? प्लस हाँ dx प्लस dy, बच्चों dy नहीं, dy 1/y² हाँ इज इक्वल टू 0। बताओ बच्चों आंसर, इसका इंटीग्रल कितना हो गया? माइनस cos of x by y, माइनस से cos यस और x नो? by y। यस सर हाँ Yes, इसका sir. कौन हो गया? sin of y by x sin of y by x, ये क्या क्या आ गया? ऐसे x, X. बराबर है। हाँ सर और ये क्या आ गया? माइनस माइनस वन y बाई y वाई Y. इज इक्वल टू माइनस सी। यस बोलो सर बच्चों समझ में आया? यस सर Yes, sir. ये है कहानी इन क्वेश्चंस की। अब जरा ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। एक मिनट। आपको यहाँ जो करना पड़ा वही नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में करना, टर्म्स को मैनेज करना है बस। और मैनेज करना कोई सिखाता नहीं है, उसको खुद से ही आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है एक बार। दिस क्वेश्चन बच्चों ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। आई डोंट नो कम बच्चों को हुआ था, लेकिन अभी शायद हो जाएगा। कारण क्या है, अभी अभी किया है ना, लगता है शायद हो जाएगा, बट आई एम नॉट श्योर। y प्लस साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स वाई, देखने में तो गंदा है। अपॉन cos स्क्वायर एक्स वाई dx, राइट? प्लस एक्स dy बाय cos स्क्वायर एक्स वाई प्लस साइन वाई dy। लास्ट वाला टर्म तो ऐसा लग रहा है पपलू है, जबरदस्ती बिठाया हुआ है। ये तो इंटीग्रेट ही हो जाएगा ना बच्चों, माइनस कॉस वाई हो जाएगा ना। हाँ तो लड़ना तो ये दो टर्म्स के साथ में ही है ना तुम लोग को, अब आप बोल रहे हो तो काम कहाँ आएगा वो मतलब। करना। तो वो होल इनटू dx है ना मतलब। हाँ बेटा, हाँ ले ब्रैकेट डाल देता हूँ मैं तेरे लिए। थैंक यू Oh God.
सर इसके लिए भी हैंड रेस करना है? एक मिनट रुकना, मेरे को इस क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है थोड़ी। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्वेश्चन ठीक है ठीक है। इसको हो गया, एंड्रेस करो। 13 स्टूडेंट्स हैव डन इट, दैट्स नाइस। अच्छा, इसको क्लब किया होगा ना? y dx सॉरी dx d of x y। बड़ी वाली टर्म को और ये वाले XD टर्म्स को वाली क्लब कर दिया term होगा को। ना? यस सर, यही तो किया, y y dx dx और x dy y प्लस dx x dy डिवाइडेड बाय कितना? cos square x of y, वो इंटीग्रेट होगा फिर प्लस 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 व्हाट? sin sin x x dx वो तो x easy dy, था। फिर तो sin x dx। तुम लोग पढ़ने ज्यादा लग गए हो कि ये किया हुआ है समय? सर ये किया हुआ नहीं है पहले से। नहीं किया पहले। मतलब पढ़ने तो ज्यादा नहीं लग पड़े हो ना? नहीं सर, वो भी नहीं कर रहे। sin y dy सर आपने क्या बोला एंड में? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, थोड़ी मस्ती मार रहा था। हो जाएगा ना बच्चों, ये करके दूं क्या आगे? नहीं सर, हो गया। हो जाएगा। डन, राइट। और जो एक कंटेंट बचा हुआ है इसमें, बताओ कौन सा वाला, याद करो और बताओ। अरे वेदांग फोटो ले बेटा। टेंजेंट नॉर्मल वाला। सर टेंजेंट नॉर्मल वाला कुछ नहीं बचा। फोटो लिया क्या? हाँ, मैंने डन से बोला। अच्छा ठीक है, अब ध्यान दो। देखो, ये वाला चीज बचा हुआ है, किसी को याद ही नहीं है। इसका फोर्थ वाला पार्ट, फिफ्थ वाला पार्ट, ये किया हुआ है हमारा वैसे। ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टोरीज। सर मैंने बोला तो टेंजेंट नॉर्मल वाला। अच्छा हाँ हाँ, ये टेंजेंट नॉर्मल वाला, सही सही बोल रही है तू। देखो बच्चों, याद करो इसमें क्या किया करते थे। इफ आई एम सॉरी, ये नहीं लिखना चाहिए यहाँ डेफिनेशन में, आप लोग को थोड़ा करेक्शन देना चाहिए। इफ टू फैमिली ऑफ कर्व्स intersect at pi/2 angle at all the intersection point, यही तो लिखा था डेफिनेशन। families are said to be orthogonal trajectory। अरे बेसिकली वो डेफिनेशन में और ये डेफिनेशन में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बेसिक क्या है पता है, समझो उस चीज को। जैसे ये सर्कल्स का फैमिली आया, इनफाइनाइट सर्कल्स होंगे ना विद सेम सेंटर। बताओ इसके जो डायमीटर्स होंगे, जितने भी डायमीटर्स होंगे, वो ऑर्थोगोनल हो गए कि नहीं हो गए इसके? हो गए सर। बस। तो किसी भी सर्कल का, किसी भी फैमिली ऑफ सर्कल्स का जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होता है वो क्या होता है? उसका डायमीटर होता है, दैट्स इट, उतना ही ध्यान रखना है। ओके, अब निकालते कैसे हैं, हाउ टू फाइंड, राइट? तो क्वेश्चन आता है, नहीं अभी क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करते हैं, पहले एक बार फॉर्मल पार्ट्स पे आते हैं। टू फाइंड, बच्चों इसका क्वेश्चन जेई मेंस में आता है, मतलब फ्रीक्वेंट आता है, और वो सर सब बच्चों को हो जाता है, सर मतलब हो जाता है सबको। हाँ, तो इसमें लेकिन इंटरसेक्ट एट pi/2 एंगल कैसे कर रहे हैं? तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे ना। कौन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा? उनको नहीं समझ, एक बार बताओ ना सर, वो सर्कल अरे वाला बाबा, एकदम। ये सर्कल C1 C2 ऐसे बहुत सारे सर्कल्स हैं, और ये उसका हाँ डायमीटर है। हाँ तो बता, डायमीटर डायमीटर और सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सेंटर कर से रहे पास हैं। होने वाली लाइन हाँ, परपेंडिकुलर होती है नहीं होती है यार? होती ओ। टेंजेंट ही हो गया अरे ना? अरे एंगल हाँ। बिटवीन डायमीटर एंड सर्कल कितना हो गया? 90 हो गया ना? हाँ सर। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ओके सर, ओके, गॉट इट, थैंक यू सर। गॉट इट? यस सर, थैंक यू सर। चलो, टू फाइंड ऑर्थोगोनल। बच्चों ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं, कितना भी डिफिकल्ट आए इजी ही होता है। ट्रेजेक्ट्री ऑफ f of x, y, c, मतलब इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालना है। तो बच्चों स्टेप 1 क्या है इसका ध्यान दो। रिमूव c टू फाइंड
differential equation of given family. बच्चों ये तो करते हो, कोई भी फैमिली ऑफ कर्व्स दिया हुआ है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हो बच्चों, बताओ। सर वो लैम्डा ये एलिमिनेट करते हो ना, उसमें आर्बिट्ररी सर। कांस्टेंट एलिमिनेट करते हो ना, बराबर ना। जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतनी बार डिफरेंशिएट सर। करना पड़ता है, याद आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट स्टेप 2, रिप्लेस dy by dx by minus 1 upon dy by dx, that is minus dx by dy। बच्चों ऐसा क्यों किया? क्योंकि जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वह एंगल कितना है, 90 है ना। मान लो 10 Yes, जगह sir. इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो सारी 10 जगह dy by dx क्या हो जाएगा, माइनस dx by dy हो जाएगा ना, हाँ सर, हाँ सर, परपेंडिकुलर, हाँ सर। राइट। और स्टेप 3 क्या है बच्चों? स्टेप 3 है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन obtained in step 2। ये बच्चों ये जो है ना, ये रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है तुम्हारी। ऑब्वियसली इसको सॉल्व करोगे तो जो भी कर्व आएगा, जरा सोचो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल्स हो गए बच्चों, एक ही डिफरेंट वैल्यूज के लिए सर्कल्स हो गए, बराबर। अब मुझे ये बताओ बच्चों कि y इक्वल टू एम एक्स, ये इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हुई ना। अरे इस सर्कल के सेंटर से पास होने वाली सारी लाइंस, बराबर ना। अब तुम बताओ इन दोनों के जो स्लोप्स आएंगे m1 m2 जो आएंगे वो -1 आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना। यस सर। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो जो कर्व आएगा उसका dy by dx और जो ये कर्व आएगा उसका dy by dx, मतलब जो गिवन कर्व है उसका dy by dx, बताओ उन दोनों का प्रोडक्ट -1 आएगा ही ना। कर ही दिया ना, बीच में वो स्टेप यूटिलाइज करिए ना। समझ में आया? जैसे एग्जांपल नहीं लेता हूं मैं एग्जांपल लेता हूं, एक तुम लोग सॉल्व करके दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालनी है। तो सबसे पहला स्टेप अकॉर्डिंग टू स्टेप 1, ए स्क्वायर एलिमिनेट किया, एक्स प्लस वाई डिवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। बताओ ये आएगा ना, 2 गायब कर दिया मैंने डायरेक्ट। यस सर, यस सर। अब मैंने डिवाई बाई डी एक्स को माइनस डी एक्स बाई डी वाई से रिप्लेस किया, एक्स माइनस वाई डी एक्स बाई डी वाई, ये स्टेप 2 हो गया, ये स्टेप 2 हो गया, ये स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 3 क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों बताओ ये dx बाई एक्स माइनस dy बाई वाई इज इक्वल टू 0, यही तो हुआ। हाँ खत्म हो गया। ln x माइनस ln y इज इक्वल टू c, तो ln mod x बाई वाई इक्वल सी। इक्वल टू c, तो mod x बाई वाई कितना हो गया बच्चों? e रेज टू सी। e रेज टू पावर c, तो y इक्वल टू mx आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। आ गया ना। मानते हो? हाँ सर, बहुत सही। बच्चों कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में जो किसी ने भी प्रीवियस ईयर में कभी भी गलत किया हो। तुमसे गलत हो जाएगा ना, तुम मान के चलो दुनिया याद रखेगी तुम लोग को। समझ रहे हो? अब इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकाल दो मुझे फटाफट। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये तुम्हारा किया हुआ है वैसे क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन बहुत करते थे बच्चे तुम लोग। सर पहले वाले सॉल्यूशन में 2x होगा ना? पहले वाले सॉल्यूशन में 2x, सबसे पहला स्टेप। अरे यार 2 तो गायब हो जाएगा ना 0 के साथ, कुछ भी बोल रहा है यार। हाँ हाँ ठीक
ठीक है सर सॉरी। हो गया। इजी तो है, मतलब इसमें क्या नहीं होगा, आंसर क्या आएगा बताओ उसका, एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वाइज के हाँ, अरे ये तो किया ही था ना, कॉन्फोकल कर्व्स नहीं करते थे क्या? हाँ यस सर। यस सर आ गया। वही तो है, उसी को तो हाँ। रिपीट कर दिया है मैंने तुम लोग के लिए। चाहो तो ये पूरा प्रोसेस अडॉप्ट करो, चाहो तो डायरेक्ट लिख दो, लेकिन बच्चों एग्जाम्स में ये तीनों स्टेप्स जो है ना यूजफुल है। बच्चों ये तीनों स्टेप्स ऐसी हैं जिससे सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, मतलब इसमें कोई ऐसा फॉल्स स्टेप नहीं है कि कहीं ट्रैप कोई हो जाएगा, ट्रैप होने के चांसेस जीरो है इसमें, मान के चलो। वेदांत सर हाँ सर ले लिया। ले लिया। इसका भी लेना है क्या? हाँ सर ले लेते, ले लिया। हो गया सर खत्म। डिफरेंशियल इक्वेशन में और कुछ भी नहीं है करने के लिए, खत्म कहानी। अब बताओ कोई टॉपिक ऐसा जो तुम लोग को मैंने प्रॉमिस किया हो कराना है और वो नहीं हुआ। जेनसेंस इक्वालिटी। हाँ वो था। जेंसन इनइक्वालिटी, कितनी छोटी छोटी चीजें ऐसी है जो तुम डिमांड रखते हो। जेंसन इनइक्वालिटी, तो बाय द वे वो किस चैप्टर का पार्ट है? अरे किसी का नहीं है वो, सब ऐसे ही ऐसे फालतू है, मतलब कुछ भी नहीं करो तो चलो जेंसन इनइक्वालिटी कर लेते हैं, ऐसे अभी देखना पता लगेगा। सर सर एक सेकंड सर, मैं पहले वो डी से क्वेश्चन पूछ लूं सर। इसका लोग क्वेश्चन का फ्रेमिंग कैसे करते हैं? ये ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का इंग्लिश का लिख रहती है वो क्वेश्चन के पहले। मैं बताऊं, मतलब ऑब्जेक्टिव में एक कर्व दे देगा, फिर बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स, कोई भी कर्व नहीं देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, राइट? समझ ओ गया? ऑप्शन ए 2 कर्व्स दे दिए, ऑप्शन बी 2 कर्व्स दे दिए, समझ में आ गया क्या? हाँ सर। सर तो हाँ तो पहले वाले को देखने चेक पर करके। कोऑर्डिनेट का लगेगा क्वेश्चन। हाँ तो वही तो मैं क्या करूं, तो वैसे क्वेश्चन आते हैं। ओके सर, ओके सर। तो मुझे एक चीज पूछना था, वो पीडीएफ जो आप भेजते हो नोट्स टाइप, तो उसमें जो क्वेश्चंस और एग्जांपल्स रहता है वो हमको लाइक बिना देखे पहले सॉल्व करना होता है फिर देखना होता है कि वी जस्ट रीड इट? नहीं नहीं, जस्ट रीड इट एंड अंडरस्टैंड, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग देन डाउट लेक्चर में उसको पूछ लो, ओके सर। उसके लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ओके सर। राइट? हाँ। चलो गाइस, जेंसन इनइक्वालिटी फॉर्मेलिटी सब जान दो, वैसे इसमें क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, समझ लो एक बार, 5-10 मिनट का काम है, समझ लो। सिलेबस में है ना मतलब? हाँ सिलेबस में है मतलब? क्या? सिलेबस में है मतलब? हाँ नहीं, सिलेबस में तो कॉन्केविटी ये d2y/dx2 ग्रेटर देन 0 है ही ना सिलेबस में, अच्छा ये ओके सर। मतलब कॉन्केव अप हो गया ना। हाँ हाँ सर, हाँ सर। इस पॉइंट को ले रहा हूँ a1, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया a1, f ऑफ a1 बराबर a2, f ऑफ a2, ये हो गया a2, ज्वाइन दिस कॉर्ड। एक बार बताओ, अगर एक कर्व कॉन्केव अप है, सब लोग ध्यान देना बच्चों, अगर एक कर्व कॉन्केव अप है तो a1 और a2 के बीच में जहां ये कॉन्केव अप है उसमें कॉर्ड ऊपर रहेगी कि कर्व ऊपर रहेगा? कॉर्ड ऊपर रहेगी। और ऊपर है। कॉर्ड ऊपर रहेगी, बस यही जेंसन इनइक्वालिटी है। अब तुम लोग बोलोगे यही है तो पढ़ा क्यों रहे हो, है ना? अब हाँ देखो, ये ऊपर रहेगी ये कहना बड़ा आसान है, इसमें क्वेश्चंस जो बनते हैं बड़े मस्त क्वेश्चन बनते हैं। कैसे? ध्यान दो सब लोग। मान लो बच्चों, एक पॉइंट मैं यहाँ पे चूज करता हूँ, राइट? इस पॉइंट को ए, ये बी और ये सी ले लेते हैं, ओके? अब अगर ये कॉन्केव अप है तो बच्चों बताओ
AC ग्रेटर देन और इक्वल टू BC होगा कि नहीं होगा? ए पॉइंट कहीं भी हो सकता है बीच में इधर। होगा सर। Yes, sir. हमेशा यही होने वाला है ना, इसके अलावा कुछ नहीं, यही होने वाला है, बस यही कॉनकेव पे तो यही होने वाला है, उसके अलावा कुछ नहीं। बच्चों हमें दौड़ के चैप्टर पूरा करना ही नहीं, राइट, आराम आराम से करना है, क्योंकि जेंसन इनइक्वालिटी डिफिकल्ट नहीं है, यूजफुल तो है ही ना, सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये चीज ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम किसी फंडामेंटल को रिपीट कर रहे हैं, यू मान के चलो। अब बच्चों मुझे दूसरी चीज ये बताओ, मान लो ये रेशो जो है ना, ये रेशो बच्चों M2:M1 है, राइट। तो बच्चों ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ क्या आएगा? M2A2 plus M1A1 upon M1 plus M2 M2A2 प्लस M1A1 डिवाइडेड बाय बताओ कितना? plus M1, M2 M1 plus M2 वाई कोऑर्डिनेट बोलो। M1FA1 M1 plus FA2 M2FA2 plus upon M1 plus M2। सब लोग ध्यान से, मतलब पैनिक होके नहीं, ध्यान से पढ़ लो। M2 F of A2 और M1 F of A1 डिवाइडेड बाय कितना? M1 plus M2। M1 plus M2। तो मैंने लगता है ये जो मैंने लिखा है ये ऐसी है, हाँ हाँ एक सेकंड, क्या कैसे कर हाँ, अबे वाई कोऑर्डिनेट है ना यहाँ का, अरे अच्छा एक सेक्शन फॉर्मूला था, सॉरी सर। हाँ सर, सॉरी सर। वाई कोऑर्डिनेट है ना, AC तो है, ये डिस्टेंस हाँ AC तो है, AC ये हाँ सर, डिस्टेंस, हाँ सर, हाँ सर, क्या ठीक है। अच्छा बच्चों C पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, C पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। वही A y का x coordinate, coordinate, 0. हाँ सॉरी। ये है ना, हाँ, कॉमा 0। अच्छा बच्चों BC बता सकते हो, BC क्या आएगा? BC x की वैल्यू डाल दो फंक्शन में, इस फंक्शन का नाम y इक्वल टू fx ही तो है, तो BC निकालने के लिए क्या करोगे? f of c कॉमा f a of का ही M2A2 प्लस M1A1 डिवाइडेड बाय M2 प्लस M1, ये आएगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू M2 f of A2 प्लस M1 f of A1 डिवाइडेड बाय कितना? M1 प्लस M2। तो ध्यान से ये रिलेशन देखो, ध्यान से रिलेशन देखो, कितना यूजफुल रिलेशन है ये। बच्चों ये जो दोनों जगह अलग अलग फंक्शन लिखा हुआ आ रहा है, ये कहाँ का पॉइंट है? कॉर्ड वाला पॉइंट है ना। इस इनइक्वालिटी में तीन चीजें पहचान करने वाली हैं। नंबर 1 फंक्शन, राइट, ये देखो ये फंक्शन 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 तीन जगह में है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 जगह में, राइट हैंड साइड में एक ही जगह। दूसरा है रेशो, रेशो पकड़ में आना चाहिए। तीसरा है बच्चों कॉन्केविटी। ये तीनों चीजें अगर एक साथ पकड़ लें हम लोग किसी क्वेश्चन में, जो कि आराम से पकड़ी जाती है बच्चों, डिफिकल्ट नहीं है किसी भी हालत में, राइट, ये तीनों चीजें एक साथ जब पकड़ लेते हैं तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं हमारे। अब सब लोग ध्यान दो, जब फंक्शन अलग अलग जगह में लिखा होता है तो ये पॉइंट कहाँ पे कंसीडर किया जाता है बच्चों? कोड पे ही आता है ना वो पॉइंट। अरे कर्व पे आने वाला पॉइंट तो यहां से देख करके और एक ही जगह में लिखा जाएगा ना, इस तरह से। तो स्कैटर्ड वे में अगर फंक्शन लिखा है ना बच्चों, स्कैटर्ड वे में फंक्शन, तो वो कहाँ लिखा हुआ है पता है तुम लोगों को? वो कॉर्ड वाला पॉइंट है, वो कॉर्ड वाला पॉइंट है। और एक ही जगह में फंक्शन लिखा, वो किधर का पॉइंट है बच्चों? वो कर्व वाला पॉइंट है, ये कर्व वाला पॉइंट है, ये पॉइंट कर्व पे है, पॉइंट ऑन कर्व। ये
पॉइंट ऑन कॉर्ड। बोलो बच्चों, सही है कि नहीं है? यस सर। और बच्चों मैं इसको जनरलाइज कर सकता हूँ। जनरलाइज कैसे? देखो इसका जनरल वर्जन क्या है, सब लोग ध्यान देना। इसका जनरल वर्जन क्या है? m1 f of a1 plus m2 f of a2 up to so on m10 f of a10 divided by क्या आएगा बच्चों? m1 plus m2 M2 up plus to M3 plus M10 m10। बताओ राइट हैंड साइड क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू M1 ये A1 f of A2 dot 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 A1 dot M1 से किधर तक? A10 M10 by summation of all the M's. M1 से M10 तक। बच्चों इसको जनरलाइज भी कर सकते हो। अरे बाबा एक काम करो, ये 1 2 3 4 ये तुम लोगों ने तक किया हो हुआ है जाएगा। फिजिक्स हाँ में, सर। पता है? बताओ एक बार बताओ, ये 10 मासेस यहाँ पे मैं रख दूं, 10 मासेस, राइट? Center of mass? तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या आएगा? अंदर ही आएगा ना, इधर ही। हाँ सर Oh. वही तो है, ये क्या है? वही तो लिखा हुआ है, बताओ। सर। हाँ सर। यस सर। एकदम जबरदस्ती टेंशन ले रहे थे इतनी देर से, यही जेंसन इनइक्वालिटी है। देखो इस पे जो क्वेश्चन पूछता है ना, उस पेज को वापस लाऊंगा, इस पेज को वापस लाऊंगा मैं अभी, रुको। सर हाँ बोलो। सर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर लेस देन 0 होगा तो सिर्फ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी ना? इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। बच्चों इक्वालिटी कहाँ होल्ड करती है बताओ? यहाँ पे इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? डी स्क्वायर वाई बाई डी इधर एक्स कट स्क्वायर ग्रेटर करेगा? देन 0। इक्वल टू टेंजेंट पे होल्ड्स व्हेन a1 इक्वल टू a2। अरे बाबा ये दोनों पॉइंट सेम आ जाएंगे तो टेंजेंट बन जाएगी ना ये हाँ लाइन। सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। बोलो बच्चों, यस सर। सही है? तो चलो यस सर। अब एक चीज ध्यान से देखो, मतलब एग्जामिनर कहाँ तुम लोग को फंसा सकता है, जहां तुम्हें लग रहा है ना कि जेंसन इनइक्वालिटी पढ़ी क्यों नहीं अब तक, नाम से क्यों नहीं पढ़ाया, राइट? उसका कारण समझो, ध्यान दो। मानो बच्चों क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये 2 ही क्वेश्चन करूंगा बस, 2 क्या, एक ही भी बहुत है वैसे तो। बच्चों ध्यान दो, उसने बोला साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। बताओ बच्चों कौन सा फंक्शन 3 जगह पे लिखा गया है? साइन एक्स लिखा हुआ है ना, Yes, sir. साइन एक्स को 3 जगह लिखा ना, साइन एक्स को अलग अलग जगह लिखा, इसका मतलब ये जो पॉइंट बनेगा वो पॉइंट बनेगा कॉर्ड पे कि कर्व पे? Chord. कॉर्ड पे बनेगा ना। जब फंक्शन अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, जब फंक्शन अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो पॉइंट कहाँ आता है? कॉर्ड पे आता है ना। अच्छा हाँ। Yes, sir. हाँ तो बच्चों एक बात बताओ, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 3√3/2। प्रूव दैट ऑल दी साइड्स, अरे यार ये मैंने इतना लंबा क्यों लिखा, ऑफ द ट्रायंगल आर सेम। इक्विलैटरली लिख देता, मतलब इसको प्रूव करना है कि अगर ये सही है तो ट्रायंगल इक्विलैटरल होगा, ये प्रूव करना है बच्चों। अब जरा सोच के बताओ बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं करेंगे यहाँ पे हम लोग। एक बात बताओ, एबीसी का रेंज बताओ बच्चों क्या है? 0 to पाई। 0 to पाई है ना। कोई भी एंगल 0 या कोई भी एंगल पाई तो हो नहीं सकता ना, बराबर? अब बच्चों दूसरी चीज ये बताओ, आराम से, हाँ जल्दबाजी नहीं करना है। फंक्शन लिया मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और ये मैंने ले लिया किस रेंज में? 0 to पाई में। बच्चों कॉनकेव अप है कि कॉनकेव डाउन है? Down. कॉनकेव डाउन। तो बताओ कॉर्ड ऊपर होगी कि कर्व? कर्व। कर्व कर्व ऊपर ऊपर होगा, होगा। कर्व ऊपर होएगा ना। अब सब लोग ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो, ध्यान से देखो बच्चों। मैं लिख रहा हूं यहाँ 1 टाइम्स साइन ए, ये मैंने यहां से देख के लिखा है, प्लस 1 टाइम्स साइन बी प्लस 1 टाइम्स साइन सी डिवाइडेड बाई कितना बच्चों? 3। बताओ सही है कि नहीं है?
ABC 3 पॉइंट ले लिए यहाँ पे, यस सर, लेस देन Yes, इक्वल sir. टू बराबर ना? बच्चों बताओ बच्चों, दूसरा पॉइंट आया साइन ऑफ A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई कितना 3, 3. ये आएगा ना? बताओ बच्चों ये वाला पॉइंट किधर है, कर्व पे है कि क्वाड पे है? Curve. कर्व पे। Wow. कर्व पे, ये ऊपर होएगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे होगा ना? Yes, sir. ऑलराइट बच्चों, ये रिजल्ट कितना आ गया, साइन A प्लस साइन B लेस देन इक्वल टू 3√3/2 प्लस साइन C लेस देन इक्वल टू 3 तो उधर गया, और ये हो जाएगा पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 कितना हुआ, √3/2। यानी ये तो जनरल रिजल्ट हो गया बच्चों, ये तो जनरल रिजल्ट हो गया। अब बताओ बच्चों इक्वलिटी होल्ड कहाँ करेगी, इक्वल टू A इक्वल B इक्वल C। इक्वल टू होल्ड्स इंप्लाइज A इक्वल टू B इक्वल टू C, प्रूव हो गया क्या बच्चों? Sir, sin A equal to sin B equal to sin C नहीं हुआ क्या? अरे यार कुछ भी, A1 इक्वल टू A1 इक्वल टू अच्छा A2 अच्छा इक्वल f टू of A3 A. था ये ना? हाँ, सब तो साइन भी हाँ. इक्वल है ना। आ गया क्या समझ में? Yes, sir. बच्चों ये क्वेश्चन इतने इजी होते हैं। देखो एक बहुत घटिया दिखने वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं तुम लोग, जिसमें तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ पे जंक्शन लग रही है, राइट? पता उसने क्या बोला, उसने बोला प्रूव दैट, 10 सेकंड में प्रूव होएगा तुम लोगों से ये जंक्शन से, प्रूव दैट sin x1 प्लस 2 sin x2 प्लस 4 sin x3 right is less than equal to 7 sin of x1 plus 2x2 plus 4x3 divided by कितना बच्चों 7, 7. hence proved। लिख दूं क्या डायरेक्ट ही, हाँ. करने की जरूरत है क्या बच्चों इसको? It is given that नहीं. x1 x2 x3 belongs to what, 0 to pi। हो जाएगा ना बच्चों प्रूव? Yes, sir. अरे बाबा रेशियो क्या दिया हुआ है, 1:2:4, लगा दो जेंसन हाँ सर, हाँ इक्वालिटी, सर, हो जाएगा। हो जाएगा ना बच्चों? अरे यार कुछ तो बोलो। यस सर, हो Yes, जाएगा। sir. हाँ अभी क्या करो, इसमें कितने क्वेश्चन, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, सारे इसी तरह से सॉल्व होते हैं। अभी सिखाने के लिए कितना भी सिखाओ। अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, चलो अच्छा बच्चों चलो एक चीज बताओ, समेशन xi बाई n होल स्क्वायर बड़ा कि समेशन xi स्क्वायर बाई सर n बड़ा? कॉशिक्स रूल। Square अरे यार वाला ये तो तुम लोग second कर वाला. चुके हो, पहले मैं फालतू बता रहा हूँ। हाँ सर। बताइए। जेंसन इनइक्वालिटी से भी होता है, बस ये बता रहा था। उसमें x square रहेगा ना फंक्शन? अरे हाँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लो तो ये 10 सेकंड में प्रूव हो जाता है एक्चुअली। हाँ हाँ ठीक है। सर क्वेश्चन लिख दो ना बस एक बार प्लीज। अरे बाबा क्वेश्चन नंबर 3, समेशन एक्स आई बाई एन होल स्क्वायर और समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई एन, दोनों में से कौन बड़ा? तो एफ एक्स इज इक्वल टू ले ले एक्स स्क्वायर, कौन के वाप हो गया ना, तो कॉर्ड बड़ी हाँ। आएगी ना, कॉर्ड ऊपर आएगी ना। हाँ एन पॉइंट्स ले ले यहाँ, एन पॉइंट्स x1 x2 x3 अप टू सो ऑन, तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू xn स्क्वायर बाई n। बताइए पॉइंट कहाँ आया, कॉर्ड पे आया कि कर्व पे आया? अलग अलग जगह है ना फंक्शन, फंक्शन 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 फंक्शन, कॉर्ड पे आएगा ना ये पॉइंट। हाँ हाँ ओके। तो कॉर्ड वाला पॉइंट ऊपर ग्रेटर देन इक्वल टू, और अब क्या करेगा x1 प्लस x2 सारे पॉइंट्स इनका समेशन xn डिवाइडेड बाई n होल स्क्वायर। ये पॉइंट किधर आया, कर्व पे आ गया ना। हाँ अरे कर्व है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस
n up to n, ये अच्छा आ गया ना, हाँ सर, हाँ सर। दैट्स इट। बच्चों कम ही समझ में आया, लेकिन ये इसको डील इसी तरह से करते हैं जेंसन इनइक्वालिटी को। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, आई विल टेल यू ऑनेस्टली, इसके प्रॉब्लम्स जब हम लोग क्वेश्चन पेपर में डालते हैं, हम लोग फंसते हो, वहां जाके इसको जब डील करते हैं ना, कि तुम्हें पता है, बस एक ही चीज ध्यान रखनी है बच्चों, कॉर्ड एंड कर्व, रिलेटिव पोजीशन। बच्चों जरा सोचो, एक बहुत गंदा क्वेश्चन आप लोगों को मैं ये वाला दे दूं, तो तुम लोग पेज अभी एक मिनट लाता हूँ, पेज लाता हूँ, मैं वापस लाता हूँ, ये ले एक बार। आंसर। बच्चों एक बात ध्यान दो, मान लो यहाँ पे कैसा, बच्चों ध्यान, मेरे को थोड़ा सोचने दो क्वेश्चन, आराम आराम से लिखूंगा। एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, एक मिनट। लेमडा e raised to power pi plus 1 minus lambda e raised to power e, right, and e raised to power क्वेश्चन बन नहीं रहा यार ठीक से, रुको। सर ये वैसा होगा क्या कि e raised to x फंक्शन है और lambda is to 1 में डिवाइड किया? अरे वही क्वेश्चन, मैं पता है क्वेश्चन अगर रफ पेज लू ना अभी, तो फटाक से बन जाएगा ये क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये वाला कर्व लिया, ये पार्ट ले लिया तुमने, क्या ई ले लिया, ये ले लिया तुमने लोगों ने पाई, पाई तो बाद में ही आता है ना, ये आ गया। ये कितना बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, ध्यान देना एक बार। और रेशियो ले लो बच्चों तुम 1 माइनस लेमडा इज टू लेमडा, राइट। अब बच्चों बताओ, ये वाला पॉइंट, ये वाले कर्व का नाम पता है ना, एफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, ओके। अब बच्चों बताओ, इसमें ये वाली लेंथ क्या आएगी, ये वाली लेंथ क्या आएगी, 1 माइनस लेमडा, अरे बाबा इसको डिवाइड करा ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा बताओ बच्चों, पाई कोमा ई रेज टू पावर पाई आएगा ना, हाँ सर, Yes, sir. और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा बच्चों, e ई raised कोमा to ई रेज टू पावर ई। तो बताओ इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या आ गया बच्चों, वाई कोऑर्डिनेट 1 माइनस लेमडा इंटू ई रेज टू पावर पाई, बराबर, हाँ yes, sir. Yes, sir. प्लस लेमडा इंटू ई रेज टू पावर ई, राइट। और बच्चों इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया, बता सकते हो इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट वही होगा जो इसका Lambda एक्स e कोऑर्डिनेट, plus 1 minus हाँ. lambda pi. 1 माइनस लेमडा इंटू पाई प्लस लेमडा इंटू ई, ये आएगा। तो बच्चों ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। बताओ बीसी क्या आएगा बच्चों, बीसी दिस विल बी ग्रेटर Less देन, than. हाँ हाँ. ग्रेटर देन, कम ऑन, एसी विल बी ग्रेटर देन, क्या आएगा बच्चों बताओ, ई रेज टू पावर 1 माइनस लेमडा पाई प्लस लेमडा ई। बोलो बच्चों, ये कंपैरिजन तुम बगैर कॉन्केविटी के कर सकते थे क्या, बोलो बच्चों, कर सकते हो क्या, नहीं. कोई नहीं, चांस सर. ही नहीं बनता। अगर मेरे को जेंसन इनइक्वालिटी का आइडिया नहीं है, तो इस क्वेश्चन को मैं कर ही नहीं सकता, मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। सोचो लेमडा का वैल्यू 1.3 दे दे, तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ, देख के ही छोड़ देंगे। हाँ क्वेश्चन देखोगे और बोलोगे कि इसको नेक्स्ट ईयर किसी और बच्चे को पूछेंगे कि तुझे आएगा क्या, समझ रहे हो। सर लैम्बडा 1.3 कैसे? हाँ ये Repetitive पूछा क्यों है? क्वेश्चन, लेमडा 0.3 ले ले, माफ कर दे मुझे। 0.3 अब तो अब भी फंस जाएगा ना, हाँ सर। हाँ हाँ लेमडा 0.3 लेगा तो कितना आएगा, 0.7 ई रेज टू पावर पाई प्लस 0.3 ई रेज टू पावर ई, और ई रेज टू पावर 0.7 पाई प्लस 0.3 ई। बताओ दोनों में से कौन बड़ा, कितने दिन तक सॉल्व करते रहोगे बच्चों, समझ में आ गया ना।
सर सर अगर 1.3 आता तो रिवर्स हो जाती ना अरे हाँ इनइक्वालिटी। बाबा, वो एक्सटर्नल डिवीजन में जाता था एक्चुअली। हाँ हाँ, लेकिन वो 1.3 लिखना नहीं है तुम्हें, उसमें बहुत नई नई कहानी आएंगी, उसको हम लोग को डिस्कस नहीं करना है था। बच्चों ये समझ में आया नहीं आया जेंसन इनइक्वालिटी? आ गया यस सर। सर। बोलो बच्चों, और क्या बचा है? चलो बताओ, ख्वाहिशें सब पूरी करो आज अपनी। कुछ नहीं सर। सर 5 मिनट बचा। बच्चों ध्यान